السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 81 ہے. ہم بات کر رہے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان. اس کو یاد رکھیے گا، یہ مین ٹاپک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میرے بندے تو خرچ کر، تم اگر خرچ کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تم خرچ کرو اور خرچ کرو گے. ایک دوسرا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ تم کو بھی دیا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے. رات اور دن مسلسل خرچ کرنے پر اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کا عرش پانی پر تھا، کتنا اس نے خرچ کیا، تب سے ان کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوئی. تقدیر کے اچھے برے فیصلوں کا ترازو انہی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ترازو کی بات کہی گئی ہے، یا یہ کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یہ ساری کیفیت حقیقت میں کوئی انسان جانتا نہیں کس کی کیفیت کیا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو ایمان لے آئیں اور بات مان لیں. جو دوسری بات اس پہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے زیادہ جو اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن دوسرا جملہ میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ جو خرچ نہیں کرتے ان کو نہیں دیتا ہے. یہ پالیسی بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ خرچ کرتا ہے ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو دیتا ہے. اس کا یہ معنی آپ نہیں نکالیں کہ جو خرچ نہیں کرتے ان کو نہیں دیتا ہے. یہ نہیں لکھا ہوا ہے. ان کو کیوں دیتا ہے؟ جو خرچ نہیں کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اس میں ایک بنیادی سوال ہے کہ سب کو اگر دے دے، جو کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے، سب کو اگر دے دے تو اللہ کی کیا پرابلم ہے؟ یعنی سارے لوگ کروڑ پتی ہو جائیں تو پروردگار عالم کو پرابلم کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ پر اس قسم کی باتیں ان کے دل میں آتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تنگی میں کیوں رکھا ہے؟ اگر وہ ہمارا بھی خزانہ بھر دے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی فرق نہیں آتا. حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، وہ چاہے جتنا. پھر کہہ رہا ہے مثال دے کر کے کہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ جب سے آسمان اور زمین قائم ہے، بلکہ اس سے پہلے سے، اس وقت سے وہ خرچ کر رہا ہے اور کوئی کمی نہیں ہوئی. تو ایک چیز پہلے اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو کہ سب کو اگر وہ کروڑ پتی ارب پتی بنا دے تو اس کی کیا پرابلم ہے؟ دو بنیادی پرابلم ہے. پہلی پرابلم، اس دنیا کو رن کرنے کے لیے، اس دنیا کو چلانے کے لیے سارے لوگ کروڑ پتی ہو جائیں، دنیا چلے گی؟ نہیں چلے گی. آپ کو مسجد بنانی ہے، اس مسجد میں لیبر ہر حال میں چاہیے. اگر وہ لیبر کروڑ پتی ہو، سارے لوگ کروڑ پتی ہو جائیں، آپ بتائیے کہ مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. آپ کا گھر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. آپ کی گاڑی بگڑی ہوئی ہے، بن سکتی؟ نہیں بن سکتی. آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک بوڑھی عورت ہے، گھر کا کام نہیں کر سکتا، کوئی عورت آپ کو ملے گی؟ کوئی نہیں ملے. پوری دنیا ٹھپ ہو جائے گی. پروردگار عالم کو اس دنیا کو چلانا ہے.
अच्छा, मैं आपकी मिसाल देता हूं। हम वालिदैन बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। आप उनको क्यों कम देते हैं? वो उनको क्या है कि अब्बा के पास इतना भरा है, देते क्यों नहीं हमको? अब्बा क्यों नहीं देते हमको? अब्बा को ये बात मालूम है कि अगर पॉकेट मनी इसको देंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। उसकी बर्बादी से बचाने के लिए उसको पॉकेट मनी लिमिटेड दी जाती है। सही बात है कि नहीं? परवरदिगार आलम भी इस दुनिया को कैसे, जब आप अपने बच्चे को नहीं बर्बाद करना चाहते हैं तो परवरदिगार आलम इस पूरी दुनिया को कैसे बर्बाद कर दे, सबको करोड़पति बना करके। लॉजिक पेश कर रहा हूं आपको। ये पहली बुनियादी वजह है। दूसरी वजह, ईमानदारी से बताइए कि दुनिया में शरारत कौन करते हैं? दुनिया वालों पर जुल्म, दुनिया वालों पे करप्शन फुटपाथ वाला नहीं करता है, गरीब नहीं करता। करता कौन है? जिसके पास खूब पैसे हैं। अगर वो सबको करोड़पति बना दे तो ये दुनिया में सुकून होगा या करप्शन होगा? करप्शन हो जाएगा। अब ये दुनिया को सुकून से रखने के लिए उसने क्या कर रखा है कि सबको करोड़पति नहीं बनाता। ये दो बुनियादी वजह है। अच्छा, अब तीसरा सवाल यह है कि हम ही को क्यों कब तंगी में रखा है, उनको क्यों नहीं रखा? ये दूसरा सवाल है। इसका जवाब दे रहा हूं। अगर उनको तंगी में ना रखे और हमको तंगी में रख दे तो भी हम सवाल करेंगे। एक सवाल तो होना ही होना है। देखेंगे मेरी बात भाई, जिसको आज तंगी में रखा है वो कह रहा है मुझे ही क्यों तंगी में रखा है। अच्छा, आप बताइए किसको तंगी में रखा जाए? मौलाना साहब को तंगी में रखा जाए तो मौलाना साहब आपके बारे में सवाल करेंगे अल्लाह ताला कि मुझे तंगी में क्यों रखा। तो सवाल तो होना है। एक सवाल होना ही होना है। जिसको भी तंगी में रख दिया जाएगा वो ये सवाल करेगा। रस्तू बहुत बड़ा फलसफी है, उससे पूछा गया कि इंसान की डिजाइन ऐसी क्यों है, यानी दो आंख है, नाक है, मुंह है, ऐसा डिजाइन क्यों है? तो अरस्तू ने कहा कि तुम बता दो कैसा होना चाहिए। तो उसने एक डिजाइन किया। तो अरस्तू ने कहा तब मैं सवाल करूंगा ऐसी डिजाइन क्यों है? अगर तुम्हारा वाला डिजाइन का बंदा है तो मैं सवाल करूंगा। तो एक सवाल तो होना ही होना है। तो परवरदिगार आलम ऐसे सवालात पर ना आपको मुत्तला करता है और ना ये बताता है, इत्तला ही नहीं देता कि मैंने ऐसा क्यों किया है। लिहाजा सबको दे दे, यही बात यहां कही जा रही है कि उसका खजाना भरा हुआ है, उस सबको दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ना देने की वजह यह है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, ये परवरदिगार आलम के उन राजों में से राज है जो तुमको बता दे तो भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप जान जाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा नमाज कौन पढ़ता है? मालदार पढ़ता है या गरीब पढ़ता है? गरीब पढ़ता है। हर नबी का, गौर से सुनिएगा, हर नबी का पहला सपोर्टर जो ग्रुप होता है, जो ईमान लाता है, वो बहुत कम मालदार लोग उसमें शामिल होते हैं। सब कौन शामिल होते हैं? सब गरीब शामिल होते हैं। ताना देते हैं नबियों को, हर नबी को ताना दिया जाता है कि तुम्हारे पास जो बैठने वाले लोग हैं ना, ये बहुत ही निचले कैटेगरी के लोग हैं हमारी सोसाइटी के। अब आप बताइए कि अगर वो निचले वाले ना हो तो नबी का कोई मानने वाला ही नहीं तैयार होगा, क्योंकि वो तो खुद मालदार और काला झाड़ रहे हो अपनी। तो ये परवरदिगार आलम का निजाम है। वो रोजी को जैसे चाहता है, पैसा जैसा चाहता है तकसीम करता है। लेकिन अगर आपको ये बात मालूम हो जाए कि मुझे तंग क्यों किया है, तो आप इतना खुश होंगे इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि हमेशा माल, आप देखें भारत में भी जो मुसलमान खूब मालदार हैं वो सबसे ज्यादा दीन से दूर भी हैं। कर्नाटक तो बहुत गनीमत है, आंध्रा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है, ये इलाके तो बहुत गनीमत हैं कि मालदार होने के बावजूद भी मस्जिद में आ जाते हैं।
यूपी है, बिहार है, यहाँ पे तो जो मालदार हैं तो मस्जिद फटकते तक नहीं है, जुम्मा भी नहीं पढ़ते हैं। बड़ा तबका मालदारों का जुम्मा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि माल नहीं तो उनको बर्बाद किया। तो अल्लाह ताला जब माल दे देता है तो ये कैफियत होती है, माल नहीं देता है तो बंदा इस तरीके से, ये अल्लाह ताला का एक निजाम है। एक बात तो ये समझने की। दूसरी चीज वो कह रहा है कि खर्चा करो, खर्चा किया जाएगा, खर्चा करो, खर्चा किया जाएगा। टंकी में पानी आता है और टंकी से पानी जाता है। अगर जाने वाले रास्ते को आप टी लगा करके बंद कर दें तो अब पानी इसमें जब आएगा और भरता जाएगा तो ये पानी सड़ेगा। पानी के फ्रेश होने की वजह क्या है? आना और जाना। अगर आपने पानी स्टॉक कर दिया तो पानी सड़ जाएगा, पानी आपके इस्तेमाल के। सेम यही माल की कैफियत है। अगर माल आने का रास्ता तो आपने खोल रखा है और जाने वाला बंद कर रखा है, अब ये माल हर लिहाज से हमको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा माल आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए। कुछ चीजें वाजिब के दर्जे में अल्लाह ने ऐसा किया कि माल जाता रहे। अल्लाह की जो पॉलिसी है, इस्लाम की जो पॉलिसी है, माल एक जगह फंसना नहीं चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए। एक आदमी के पास, एक आदमी पूंजीपति बनता जाए। आपको मालूम है अभी लॉकडाउन से पहले मुकेश अंबानी साहब 100 बड़े मालदारों की लिस्ट में नहीं थे, अभी वो चौथे नंबर पर आ गए। लॉकडाउन में सब बर्बाद हो गए, ये कहां पहुंचे आकर के? ये दुनिया के चौथे नंबर पर। कहां कैसे आए? उस पॉलिसी ने क्या किया कि उसको पूंजीपति बना दिया। इस्लाम कहता है कि पैसा एक जगह फंसे नहीं, उसके लिए उसने क्या किया? देखिए उसका निजाम क्या है। पहला निजाम यह है कि वो 2.5% हर हाल में ज़कात हिसाब से निकाले ताकि पैसा डिवाइड होता रहे। नंबर 2, जब आपका हमारा इंतकाल हो जाए तो एक हाथ में प्रॉपर्टी न जाए। प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो कभी भी महरूम नहीं होता। आप ना दे रहे हो वो अलग बात है। जैसे मरने वाले के अगर वालिदैन मौजूद हैं तो हर हाल में वालिदैन को हिस्सा जाएगा। नंबर 2, मरने वाला अगर शादीशुदा है और उसके या मरेगा तो बीवी होगी या शौहर होगा, अगर शौहर या बीवी में मौजूद है तो उनको हर हाल में हिस्सा जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, मरने वाले के बेटा और बेटी मौजूद है तो उनको हिस्सा जाएगा। ये 6 लोग कभी महरूम नहीं हो सकते हैं, इनको हर हाल में हिस्सा जाना। ये क्यों? ताकि वो जो 100 रुपए तुम्हारे पास थे वो इकट्ठा होकर थे 100 रुपए, वो क्या हो जाए? 6 जगह क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड होंगे। उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो मैंने परसेंटेज रखा है कि अम्मा को इतना दिया जाए, अब्बा को इतना दिया जाए, बेटे को इतना, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि ये परसेंटेज मैंने क्यों रखा है। अगर उस पर गहराई से आप गौर करेंगे तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसको कितनी जरूरत है उस लिहाज से दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उस कहा कि पैसे को क्या हो जाए? तकसीम हो जाए। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका कि अगर किसी शख्स ने, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी शख्स ने, इंसान ने आपसे अपील की कि मैं परेशान हूं और आपके दिल में ये बात उतर गई कि ये बंदा परेशान है, लाजिम है कि आप उसकी परेशानी को पैसे से दूर करें। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़कात दे चुका हूं, मैं वरासत निकालने वाला हूं। नहीं, आपको हर हाल मदद करनी है। सबके लिए, पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूं, कोई एक आदमी की बात नहीं कर। आप किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं, अमीर ने अगर अपील कर दिया तो हर हाल में आपको देना, वरना आप गुनहगार हो जाएंगे। इसीलिए अमीर की जिम्मेदारी होती है कि कभी भी फिक्स अमाउंट न तलब करे, क्योंकि मालूम नहीं उस आदमी के पास उतना, परसेंटेज करे तो भाई आप जो भी आपकी इनकम है उसका 0.5%,
उसका 1%, ऐसे आप तलब करें। तो अमीर जमात है तो अमीर वहां से पैसा निकलना चाहिए, तो परेशान हाल के लिए पैसा निकले। तीसरा, अगर आपका ब्लड रिलेशन, और कई मरता आपको बताया हूं कि ब्लड रिलेशन में 6 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 6 लोग आते हैं। एक, हम जिस माँ से पैदा हुए हैं उससे हमारा भाई हमारी बहन पैदा हुई है। हमारे अब्बा जिससे पैदा हुए हैं उससे हमारे चचा पैदा हुए हैं और हमारी फूफी पैदा हुई है। माँ जिनसे पैदा है वहां पर हमारी खाला पैदा हुई है और मामू। ये 6 लोग अगर परेशान हैं और आपके पास पैसा है, आप लाजिम है कि उनकी पैसे से मदद करें। इस तरीके से इस्लाम चाहता है कि पैसा खर्च होता है। फिर इस हदीस में बात आते ही कैसे खत्म। इस हदीस में कहा गया कि तुमने देखा है कि अल्लाह ताला ने जब से पूरी कायनात को बनाया है उस वक्त से खर्च कर रहा है और कुछ भी कमी नहीं आ रही है। आप सोच रहे हैं अल्लाह क्या खर्चा कर रहा है? एक सवाल है, अल्लाह क्या खर्चा कर रहा है भाई? ना उसकी फैमिली है, नहीं। 2 तरीके के खर्च। सूरज उसने बनाया, एक मिसाल दे रहा हूं, सूरज उसने बनाया, सूरज जो फायदा दे रहा है उसके खर्च करने के बावजूद सूरज में कोई कमी नहीं आई। वो एनर्जी दे रहा है, तो अरबों खरबों रुपए रोजाना बचाता है दुनिया वालों को। बचाता नहीं बचाता सूरज? अरबों खरबों रुपए जो एनर्जी दे, एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि अरबों खरबों रुपए सूरज के जरिए लोग कमाते हैं लोगों को, लेकिन सूरज के उस खर्च करने जिसके अंदर जिसने रखी है सलाहियत अल्लाह ने, उसके बावजूद उस सूरज में कोई कमी वाक़ नहीं। कमी कब करेगा वो? जब ये तय कर लेगा कि इस जमीन इस दुनिया को हमको क्या करना है, खत्म करना है, तो वो जो कुछ भी खर्चा कर रहा है सब रोक लेगा, दुनिया अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म। हजारों एकड़ करोड़ों एकड़ बल्कि जंगल हैं, वो आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। उनके फायदा पहुंचे थे नीम का दरख्त है मिसाल के तौर पर। नीम का दरख्त ऑक्सीजन दे रहा है, वो ऑक्सीजन कौन रखा उसके अंदर? अल्लाह ने रखा है। उसके ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं आई। क्या नीम का दरख्त पुराना हो रहा है लिहाजा ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता चला जाएगा? ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के खर्च करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग। एक ये है कि आपको मालदार बनाया, आपको पता भी नहीं चला कि हम क्यों मालदार हो गए। कुछ लोग कोशिश करके मालदार हुए, कुछ लोग ऐसा भी है कि ऐसे मालदार हो गए कि पता ही नहीं चला हम मालदार क्यों हो गए। हमारे पैसे में अल्लाह ने क्यों बरकत रखी है? दूसरा भी हमारे साथी काम कर रहा था, हमारे ज्यादा इंटेलिजेंट था, हमसे ज्यादा समझदार था, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला और हमको मिलकर के उसी में हम जो है वो इतने बड़े आदमी हो गए। तो ये अल्लाह ताला का खर्चा करने से मुराद उसकी तमाम कायनात में दी हुई चीजें हैं। जमीन है, ईमानदारी से बताओ, जब आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे ना, जब पैदा हुए, कितने लोग थे जमीन पर? 1 आदमी। 1 आदमी से इस वक्त कितने आदमी हुए? 7 अरब लोग मौजूद हैं, और 1 अरब में 100 करोड़ होता है। 1 अरब में 100 करोड़। जब आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे तो भी इस जमीन से उनके लिए खाना पैदा हुआ है, और 7 अरब लोग मौजूद हैं तो भी इस जमीन से खाना निकल रहा है। जमीन खाना निकालने के बावजूद भी जमीन के खजाने में कोई कमी नहीं हुई। देख रहे हैं? ऐसे आप सोचेंगे, ये भी इस हदीस का मतलब हो सकता है कि अल्लाह ताला का जो खर्च कर रहा है उसके खर्च करने की वजह से कोई फर्क नहीं आया, चाहे आप जमीन को देख लें, चाहे आप सूरज को देख लें, चाहे आप दरख्त को देख लें, क्योंकि ये सब हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और फिर आखिरी जुमला कहते हैं लोग कि आपको पैदा किया गया है अल्लाह ताला के लिए कि उसकी बात मानी जाए। ये सारी चीजें उस वक्त से हो रही हैं जब जमीन जब आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, उसके खजाने में कोई कमी वाक़ई नहीं है। ये बातें बताना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।